کراچی میں 200 سے زائد غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا انکشاف، رکن اسمبلی آصف موسیٰ کا تمام غیر قانونی ہائیڈرنٹس ختم کرنے کا اعلان۔ پارلیمانی سیکریٹری قاسم سمرو نے کہا 223 ہائیڈرنٹس مکمل ختم، 183 سے زائد مقدمات درج کیے گئے، 3200 واٹر ٹینکر پر QR کوڈ نصب کیے۔ KMC کے پاس 46 فائر ٹینڈر، صرف 4 ناکارہ ہیں۔ MQM کی قرۃ العین کا کراچی میں جام بنانے کا مشورہ۔ سندھ اسمبلی میں تھرکول اینڈ انرجی بورڈ کا ترمیمی بل منظور، صابر قائم خانی نے اعتراض کیا، کمرشل ایریاز میں کہیں بھی پبلک ٹوائلٹ نہیں۔ قاسم سراج سومرو کا پبلک مقامات پر بیت الخلا بنانے کا اعلان۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ اسمبلی میں 200 سے زائد غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا انکشاف، ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید کی زیر صدارت محکمہ بلدیات سے متعلق پوچھے گئے سوالات پر پارلیمانی سیکریٹری نے جواب دیے۔ قاسم سومرو نے تحریری جواب میں کہا 223 ہائیڈرنٹس مکمل ختم کیے گئے، 183 سے زائد مقدمات درج کیے، 3200 واٹر ٹینکرز پر QR کوڈ نصب کیے۔ KMC کے پاس 46 فائر ٹینڈر ہیں، صرف 4 ناکارہ ہیں۔ کہ ہم نے ان کے خلاف پراپرلی ہی ایکشنز کیے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم مختلف اوقات میں یہ ہوتے بھی رہے ہیں۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، جو نمبر آف FIRs مینشن کی گئی ہیں جواب میں کہ ہم نے اتنی FIRs بھی ان کے اگینسٹ لانچ کی ہیں کہ ہم نے اپنے ایکٹ میں اس کے لیے سزائیں الگ سے تجویز کر رہے ہیں، جو ایکٹ میں امینڈمنٹس انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم لے کے آئیں گے، سو دیٹ اس کی جو اس پہ جو جتنی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے پاسبل وہ کریں۔ ایوان میں وزیر قانون ضیاء الحسن لانجر نے تھرکول اینڈ انرجی بورڈ کا ترمیمی بل پیش کیا، جو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ وزیر قانون نے کہا کہ یہ 2011 کا بل ہے جس میں معمولی ترامیم کی جا رہی ہیں۔ Sir, I rise to move a motion that the provisions of Rule 99 and 100 of the Rules of Procedure may be dispensed with, and Government Bill number 31 of 2025, a bill to amend the Thercoal and Energy Board Act 2011, may be taken into consideration by the Assembly at once. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the motion is carried. پیپلز پارٹی کی رکن روما مشتاق نے کرسمس کے حوالے سے قرارداد پیش کی، جس پر تمام جماعتوں کے ارکان نے خطاب کرتے ہوئے مسیح برادری کو مبارکباد پیش کی اور قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ Christmas is celebrated on 25th December every year. Therefore, this House resolved to extend its heartfelt congratulations and best wishes to the follower of Jesus Christ on the joyous occasion of Christmas. PTI حامی سجاد سومرو نے لیاری سے اغوا ہونے والے بچے کی تصاویر ایوان میں لہرائیں۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لانجر نے بچے کی بازیابی کا یقین دلایا، جبکہ قرۃ العین خان نے منشیات بڑھنے، عبدالوسیم خان نے پانی کی قلت سمیت دیگر مسائل پر ارکان نے توجہ دلاؤ نوٹسز ایوان میں پیش کیے۔ ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتے ہوئے گورنر سندھ کا حکم پڑھ کر سنایا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کراچی میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی وزیر اعلیٰ سندھ کی اولین ترجیح۔ شہر میں ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے 155 ارب مختص، شہر قائد کی سڑکوں کے لیے 194 ارب روپے مختص۔ شاہراہ بھٹو، ملی ندی پل اور انڈر پاسز کراچی منصوبوں میں شامل، منصوبوں پر کام تیز، معیار یقینی بنانے کا حکم، تمام نئے منصوبوں میں ڈیزاسٹر رسک شامل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی K4 واٹر سپلائی اور ہب کینال منصوبوں کی کڑی نگرانی کی بھی ہدایت۔ سندھ کے لیے 1018 ارب روپے کی جامع ترقیاتی حکمت عملی کی منظوری۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 520 ارب روپے مختص، سڑکوں کے انفراسٹرکچر کے لیے 582 ارب، شعبہ تعلیم کے لیے 340 ارب روپے کی منظوری۔ سیلاب سے متاثرہ 1600 اسکولوں کی تعمیر نو کا فیصلہ۔ سکھر میں خواتین یونیورسٹی، 9 نئے کیڈٹ کالجز بنانے کا اعلان۔ شعبہ صحت کے لیے 300 ارب روپے مختص، 9 DHQ اسپتالوں کی توسیع ہوگی۔ مفت علاج کے لیے SIUT، NICVD اور انڈس اسپتال کو گرانٹس۔ سندھ حکومت کراچی کو دوبارہ مضبوط فعال بنانے کے لیے متحرک، صنعتی علاقوں کے لیے 9 ارب 28 کروڑ روپے کی منظوری، تاریخی فیصلہ قرار۔ سینئر وزیر شجر نعیم ایمن نے اعلان کیا، جامع روڈ میپ کے تحت منصوبے 6 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ فنڈز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس سے فراہم کیے جا رہے ہیں۔
فنڈز کی منصفانہ تقسیم عملی اقدامات کا ثبوت ہے۔ لانڈھی سیکٹر 36B اور 4A کے درمیان واقع برساتی نالہ تجاوزات اور کچرے کی لپیٹ میں ہے، جبکہ کھیل کے میدان سے متصل نالے کے اطراف حفاظتی دیوار نہ ہونے کے باعث بچوں کا نالے میں گرنا معمول بن چکا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ کچرے کے انبار، تجاوزات کی بھرمار، حفاظتی دیواریں غائب، ضلع کورنگی میں برساتی نالہ خطرہ بن گیا۔ ضلع کورنگی کے لانڈی اور کورنگی ٹاؤن حکومتوں کی حدود میں واقع برساتی نالے اس وقت بدترین حالت کا شکار ہیں۔ انہی نالوں میں لانڈی سیکٹر 36B اور 4A کے درمیان واقع برساتی نالہ بھی شامل ہے، جو تجاوزات کی زد میں آ کر اپنی اصل شناخت کھو چکا ہے۔ نالہ دھوبی گراؤنڈ کے قریب خطرناک انداز میں کھلا ہوا ہے، جہاں کچرے کے ڈھیر اور بدبو نے ماحول کو اذیت ناک بنا دیا ہے۔ کھیل کے میدان سے متصل ہونے کے باوجود نالے کے گرد حفاظتی دیوار نہ ہونا معصوم بچوں کے لیے جان لیوا خطرہ بن چکا ہے۔ کافی ٹائم ہو گیا اس کو خراب ہوئے ہوئے، مگر یہ ہے کہ ابھی جو ہے بارش کے اندر جو ہے انہوں نے نالے صاف کرے تھے بارش سے پہلے، اور صحیح صاف کرے تھے۔ ظاہر ہے جب دیواریں نہیں ہیں اس کی تو کچرا توڑ کے آتا ہے۔ دیواریں کیسے ٹوٹی؟ یہ دیواریں مطلب یہ انہوں نے بنوائے تھے، روڈ بنا رہے تھے تو وہ صفائی کر رہے تھے، صفائی کرنے میں ان سے دیواریں ان کی شاول سے ٹوٹی تھی نا۔ پہلے بھی کر کے گئے، اندر تو لکیر نکال کے گئے تھے، رکاوٹ تو ہو رہی ہے مگر کیا کریں، بہت سے یعنی پہلے نکال کے گئے تھے، اندر سے کچرا نکال کے لے کے گئے تھے۔ گراؤنڈ میں کھیلنے آنے والے بچوں کا کہنا ہے کہ کھلے نالے میں بچوں کا گر جانا معمول بن چکا ہے، جبکہ کئی بار حادثات ہوتے ہوتے رہ گئے ہیں۔ 1 سے 2 بچے یہاں گر چکے ہیں، یہ کھیلنے آتے ہیں تو وہ بال کے چکر میں کوئی گر جاتا ہے، کوئی جان بوجھ کے جاتا ہے۔ یہ جب ہم ادھر سے آتے ہیں یہ نالے کو پار کر کے آنا ہوتا ہے، اتنی مشکل ہوتی ہے، کوئی بچے تو گر بھی جاتے نالے میں، تو اس لیے نالے کو بند کروایا جائے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کچرا کنڈی کے خاتمے میں ناکام دکھائی دیتا ہے، جبکہ KMC کا محکمہ انجینئرنگ نالے کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کر سکا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ سال 2025 میں بھی کراچی کا کچرا شہریوں کے لیے درد سر بن رہا۔ مجموعی طور پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سوشل میڈیا پر بہتر اور آن گراؤنڈ بدتر دکھائی دیا۔ کراچی کا کچرا شہریوں کے لیے درد سر بن رہا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ سندھ سالڈ ویسٹ کے قیام کو 9 سال مکمل ہوئے، مگر ادارہ کراچی سے مکمل طور پر کچرا اٹھانے میں ناکام رہا۔ منتخب بلدیاتی نمائندے کہتے ہیں اربوں روپے اخراجات کے باوجود پوچھ گچھ کا نظام موجود نہیں۔ سالڈ ویسٹ کی خامیوں کا خمیازہ دیگر بلدیاتی اداروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے بلدیاتی اداروں سے کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے سے گھر گھر کچرا اٹھانے کا نظام تاحال قائم نہیں کیا جا سکا۔ اس ٹائم جتنی بھی گاربیج آپ نالوں میں جا کے دیکھیں اور جو گھروں سے سیلف کلیکشن کی بالکل زیرو ہے، اگر وہ چیز اگر یہ کلیکشن کرنے لگ جائیں تو یہ روڈوں پہ کچرا نہیں ہوگا اور نہ یہ نالوں میں لوگ پھینکے جائیں گے۔ تو میں تو بار بار ہر فورم پہ جا کے نکلا ہوا آواز اٹھا رہا ہوں، اور بالکل اس دفعہ ہم سے ناصر شاہ صاحب منسٹر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ایک نیا ایکٹ، نیا قانون لے کے آئے جس میں UC چیئرمین بھی اس میں اس کو ہم پاور دیں گے اور اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے، اور ٹاؤن چیئرمین کو جو ان کا پروجیکٹ تھا، جس طریقے سے جو سبز باغ دکھا کر یہ ایکٹ 2014 میں پاس کیا گیا تھا، اس کے مطلوبہ نتائج 2014 سے ابھی تک نہیں نکلے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ 11 سال میں جب جو ترقی نہیں ہوئی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ طارق علی نظامانی نے سال 2025 کو ادارے کو بہتری کی جانب گامزن کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے سال سے تشبیہ دی۔ الحمدللہ اس سال ہم نے فش ہاربر اتھارٹی نے بھی ہمارے ساتھ MOU سے سائن کیا اور اپنی پرائمری کلیکشن ہمارے حوالے کی۔ 2 ماہ پہلے پاکستان ریلویز نے بھی ہمارے ساتھ MOU سائن کیا اور جو ہے کینٹ اسٹیشن کی پرائمری کلیکشن کی سروسز ہمارے حوالے کی، اور الحمدللہ جس کو آپ نے آپ کی نالج میں آیا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب جب لاسٹ وزٹ میں آئے تو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ رواں سال بھی شہر میں 6 جدید گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز اور 2 جدید لینڈ فل سائٹس قائم ہوئیں۔ کچرے سے بجلی بنانے کا جھانسا بھی دیا گیا، تاہم معاہدے کی شکیں رون دی گئیں۔ تاہم سندھ سالڈ ویسٹ صرف افسران اور ملازمین کو کھپانے کا ادارہ بنا ہوا ہے۔ ادارے میں بڑی بڑی پوسٹیں موجود ہیں، لیکن پوسٹوں پر تعینات افسران و ملازمین اہلیت کے اعتبار سے شہر کو صاف کرنے کا کوئی موضع نہ دکھا سکے۔
कैमरा टीम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। निजकारी के खिलाफ PIA मुलाजमीन ने बिलावल हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। सदर PIA CBA हिदायतुल्लाह खान कहते हैं मुलाजमीन का मुआशी कत्लेआम नहीं होने देंगे। कौमी एयरलाइन की निजकारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कौमी एयरलाइन की निजकारी नामंजूर। बिलावल हाउस के बाहर पीपल्स यूनिटी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने PIA की निजकारी के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन से खिताब में पीपल्स यूनिटी के सदर हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी चाहें तो ये निजकारी रुक सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को बताने आए हैं कि हम आपके सिपाही हैं। हमारी आज बात हुई थी, पालपा से भी हुई है, वो भी आ जाएगी। सीप के भी आने की उम्मीद है। पायलट्स की जो सिचुएशन है साथ साथ ऑलरेडी हमारे साथ है और हमारे जितने रिटायर्ड मुलाजिमीन 16,000 के करीब हैं वो भी हमारे साथ खड़े। बाकी अदर तंजीमें भी हमारे साथ है। इंटरनेशनल लेवल पे हम ITF के मेंबर हैं, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन जो है ना उसके, वो भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा हुआ है। हम इस प्रोटेस्ट को तमाम एयरपोर्ट्स पे और तमाम स्टेशनों पे जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला जब तक इसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलेगा। पीपल्स यूनिटी के सेक्रेटरी अली लाशारी ने कहा कि हमें PIA मुलाजमीन की पेंशन और मुलाजमत की यकीन दहानी कराई जाए। मसला है हज़ारों मुलाजमीन का और ख़ासकर उन हज़ारों मुलाजमीन का जो PIA से 60 साल की उम्र के बाद रिटायर हो गए हैं। हमारा मुतालबा ये है कि वो हमारे मजदूर जो 60 साल तक PIA के अंदर रहे और उसके बाद वो अभी इस उम्र के अंदर दुख और बीमारियों का शिकार हैं, अब उनसे अगर मेडिकल की सहूलियत भी छीनी जाए, उनसे अगर पेंशन की सहूलियत भी छीनी जाए तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ज़ालिमाना एक इक़दाम है। इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। एहतजाजी धरने में शरीक ख़वातीन मुलाजमीन का कहना था कि निजकारी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह से बहुत उम्मीदें हैं, अल्लाह पाक हमारे PIA को महफूज रखे और जो है हमारे जितने भी मुलाजमीन हमारे भाई हैं इनकी रोज़ी बरकरार है और निजकारी के अमल से बेहतर है कि इसको तरक्की देने की बातें करें। निजकारी PIA को करने का कोई जवाब ही नहीं है, किसी किस्म से इसका कोई हल ही नहीं है मसले का। नहीं होगी इंशाल्लाह। हम आए हैं, निकले हैं अपने घरों से, इसलिए तो निकले कि निजकारी को रोक सके और इंशाल्लाह जरूर रोकेंगे निजकारी को हम लोग। PIA रिटायर्ड मुलाजमीन के सदर मंसूर अली ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन का कोई परेशान हाल नहीं है। अभी तक इन्होंने हमसे कोई अभी ऑन बोर्ड नहीं लिया मैनेजमेंट ने हमें किसी तरीके से, और जाहिर सी बात है हमारा मेडिकल है और उसके बाद पेंशन है। पेंशन भी हमारी इतनी कम है कि आप सोच नहीं सकते। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से भी और बिलावल भुट्टो साहब जो हमारे लीडर हैं उनसे गुजारिश है कि इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि PIA को औने पौने बेचने की कोशिश की जा रही है। निजकारी रुकवाने के लिए आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया जाए। निजकारी रुकवाने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गुजारिश की है। उम्मीद है अच्छी खबर मिलेगी। कल निजकारी नहीं होगी, इंशाअल्लाह अच्छी खबर आएगी। अगर निजकारी हुई तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। कैमरामैन हसन अजीज के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। बैरून ममालिक नौकरी के लिए जाने वालों के मसाइल बढ़ गए हैं। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर एसोसिएशन के साबिक नायब सदर अदनान तराशा ने कहा है कि बैरून ममालिक पाकिस्तानी वर्कर सालाना $38 अरब का कीमती ज़र मुबादला भेज रहे हैं। ऑफलोडिंग के सबसे ज़्यादा मसाइल विजिट वीज़े वालों के साथ हुए हैं। ट्रैवल एजेंट्स विजिट वीज़े लेकर देते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपने जो रेमिटेंसेस की बात की तो मैं हमेशा यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इंसेंटिव किस रेमिटेंसेस से बेहतर है कि हम इसको ऑर्गेनिक वे में बढ़ाएं। इंसेंटिव में इतना हम अरबों रुपए पाकिस्तान गवर्नमेंट का लग रहा है। हम बहुत से ऐसे तरीके हैं, ऐसी प्लानिंग्स और चीज़ें कर सकते हैं जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे अपना जो मीडियम लेवल के या लोअर क्लास के जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे अपना पैसा इंजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो ऑफलोडिंग के जो इस टाइम पे अवामिल हम देख रहे हैं, तो ऑफलोडिंग सबसे पहले हम ये देखें कि ये ऑफलोडिंग हो कौन से वीज़ाज रहे हैं। मोस्टली ये विजिट वीज़ाज हो रहे हैं जो कि, और जो ज़ायरीन हैं वो उसमें से ऑफलोडिंग हो रही है, जिसमें हमारे भिखारियों के भी केसेस सामने में आया है। और विजिट वीज़ा पे जो लोग मुख्तलिफ ममालिक की तरफ जाते हैं और वहाँ से फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ का रुख करते हैं, तो वो उनके ऊपर ये प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के जो वीज़ाज हैं उसके ऊपर एज सच ऑफलोडिंग के केसेस देखने में नहीं आए। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच, इंसदादी दहशतगर्दी और दीगर अदालतों के केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं।
सेशन कोर्ट के मुलाजमीन के अलाउंसेज में इजाफा न करने का केस। तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी कानून और AG सिंध को नोटिस। तौहीन अदालत की मुलजिमान से आइंदा समाअत तक जवाब तलब। औरंगी टाउन में घरेलू तनाज़े पे बीवी के हाथों शौहर के कत्ल का मुकदमा, 75,000 रुपए के आवेज, मुलजिमा की जमानत मंजूर, रिहाई के अहकामात भी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार जामिया कराची के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत। प्रोफेसर खालिद इराकी और प्रोफेसर इमरान अहमद ने जवाबी हलफनामे जमा करवा दिए। अदालत की दरख्वास्त गुजार के वकील को फरीकैन के जवाब वसूल करने की हिदायत। आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तिना में तौसी। भारतीय खुफिया इदारे की फंडिंग और कत्ल का मुकदमा। जेल हुकाम ने कल TDP के 3 दहशतगर्दों को अदालत में पेश किया। मुलजिमान की मोबाइल फोन वापस करने की दरखास्त मुस्तरद। शनाख्ती कार्ड वापस करने की दरखास्त मंजूर। मजदूर समेत 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। गुमशुदा अफराद की बाजियाबी और तहकीकात के लिए तयशुदा SOPs नजरअंदाज। पुलिस की जानिब से ज़ाब्तों पर अमल दरामद न करने पर अदालत बरहम। मजदूर करीमुल्लाह और गुलाम अब्बास का सुराग न लगाने पर भी अदालत का इजहार बरहमी। तदबीर के बावजूद SHO थाना सच्चल पेश न हुए। अदालत ने बिलाल शाह समेत दीगर की बाजियाबी की दरखास्तें निपटा दी। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान के दौरे कराची में अहम सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। गवर्नर हाउस कराची में मुनक़दा तकरीब में खुसूसी शिरकत की। गवर्नर कामरान खान चेसोरी की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान की खिदमात के एतराफ़ में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की कराची में सरगर्मियाँ। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब में खुसूसी शिरकत। एक बार फिर इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की गवर्नर हाउस कराची में आमद पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गवर्नर कामरान टेसोरी की ख्वाहिश पर निजी यूनिवर्सिटी की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को इनकी खिदमात के एतराफ़ में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना था कि आलमी ताकतें दीनी तबके को खौफ की अलामत समझती हैं। अफगानिस्तान में भारतीय गठजोड़ के शवाहिद मौजूद हैं। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने जाकर अफगानिस्तान से मिलते हैं। मौलाना साहब के सामने ये बात रखी और मैं इंतहाई खुशी से ये बात कह रहा हूँ कि मौलाना साहब ने खुद एक किरदार अदा किया। जब अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं थे तो इन्होंने वहाँ जाकर भी उन लोगों को बातचीत की और एक हल निकाला। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानियों को निकाल कर 40 साला मेहमान नवाजी ज़ाया कर दी। उन्होंने 2018 और 2024 के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देते हुए नए इंतखाबात का मुतालबा किया। मुझे शिकायत है इस बात की कि वहाँ पर कुछ मुसल्लह तंजीमें हैं और उनके मराकज़ वहाँ पर हैं और ज़ोर हम डाल रहे हैं यहाँ पर मुहाजिरीन के ऊपर जो 40 साल से हमारे मेहमान हैं। तो इस तरीके से कि ज़ोर कहीं और जगह से आ रहा है और उसका इजहार हम किसी और जगह पे कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुहाजिरीन को हमें मेहमान की तरह डील करना चाहिए। और 18 का इंतखाब वो अवामी था, न 24 का इंतखाब वो अवामी है। एस्टेब्लिशमेंट के धांधलियों के नतीजे में पैदा होने वाली हुकूमतें ख़त्म हो जानी चाहिए। सिंध से लेकर KBK ख़त्म हो जानी चाहिए और दोबारा से मुल्क के अंदर इंतखाब होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का यह भी कहना था कि 26वीं तरमीम को मुतनाज़ न बनाया जाए। कैमरामैन नवीदुर रहमान के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। स्टेट बैंक के मुताबिक 25 दिसंबर बरोज़ जुमेरात तमाम बैंक और मालियाती इदारे बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आलामिये के मुताबिक बैंक्स और दीगर मालियाती इदारे 25 दिसंबर को यौम क़ायद-ए-आज़म और क्रिसमस के मौका पर बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 दिसंबर बरोज़ जुमेरात को क़ायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश और क्रिसमस डे के मौका पर मरकज़ी बैंक बंद रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स कमी से 1,71,204 की सतह पर बरकरार रहा। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,72,167 और कम तरीन सतह 1,70,858 रही। स्टॉक मार्केट में आज सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर में सरमायाकारी का रुझान ज़्यादा देखा गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक अमरीकी इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 25 पैसे का हो गया। यूरो 36 पैसे महंगा होकर 331 रुपये 60 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपये 29 पैसे महंगा होकर 369 रुपये का हो गया। यूएई दिरहम 3 पैसे बढ़कर 77 रुपये 41 पैसे का हो गया।
सोने और चांदी की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 तोला सोना 6,200 रुपए मजीद महंगा। 1 तोला चांदी पहली बार 7,000 रुपए से तजावुज कर गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक महफूज सरमायाकारी पर सोने के सौदों में खरीदारी का रुझान है, जिससे आलमी मार्केट में सोना $62 महंगा होकर $4,400 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे के बायस मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 6,200 रुपए महंगा होकर मुल्की तारीख में पहली बार 4,62,362 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोना 5,315 रुपए बढ़कर 3,96,400 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। तलब बढ़ने पर 1 तोला चांदी 218 रुपए इजाफे से 7,205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महकमे तरक्की निस्वां सिंध के तहत नेशनल वर्किंग वुमेन्स डे पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां खवातीन को दरपेश मसाइल, हैरासमेंट, कम उम्र की शादियों और हुकूमती इक़दामात पर खुलकर बात की गई। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मेहनत, हौसले और जद्दोजहद की अलामत वर्किंग वुमेन्स डे के मौके पर सिंध भर से खवातीन की शिरकत। तकरीब में खवातीन की हकूक, तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने के अज़म का इआदा किया गया। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर तरक्की निस्वां शाहीना शेर अली का कहना था कि वर्क प्लेसेस पर खवातीन को चैलेंजेस का सामना है। हरासमेंट औरत को डराने का एक हथकंडा है, मगर हम अब खामोश नहीं रहेंगे। माजी में खवातीन के लिए आज़ादी कम और ज़बर ज़्यादा था। अपने आप को मनवाना, बहुत सारे चैलेंजेस, वो उन चैलेंजेस को फेस कर रही है और उस पे काम कर रही है, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम बात करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे ही बीच में से एक औरत उठ के वो कहाँ तक पहुँच गई। शाहीना शेर अली का कहना था कि सिंध से कई कम उम्र लड़कियों के निकाह पंजाब और बलूचिस्तान में करवाए जाते हैं। हमारे पास जो बच्चियां निकलती हैं या बलूचिस्तान में जाके निकाह करती हैं या पंजाब में, क्योंकि ये दोनों बॉर्डर जो है वो सिंध के साथ करीब करीब लगते हैं। तो जब कहा जाता है कि अर्ली चाइल्ड जो मैरिज एक्ट है वो आप लोगों ने पास तो किया, लेकिन फिर भी केसेस आ रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी का कहना था कि सिंध हुकूमत ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए न सिर्फ कवानीन बनाए बल्कि उन पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया है। सिर्फ लॉस ही पास नहीं किए हैं, हमने सिर्फ पेपर वर्क नहीं किया, इसमें प्रैक्टिकल भी अगर आप चीज़ें देखें कि जिस तरह खवातीन को एक साजगार माहौल देने के लिए पिंक बसेस चलाई गई हैं, पिंक स्कूटीज़ अभी चलाई गई हैं, क्योंकि वो वही खवातीन हैं जो काम पे जाती हैं, जो पढ़ने जाती हैं। तो जिस तरह की हैरेसमेंट के केसेस रिपोर्ट होते थे हमारे पास, उसकी रोकथाम के लिए कि बस जो बसेस हैं वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक खवातीन के लिए हैं कि वो उसमें सफ़र कर सकें, वो अपनी जगहों पे जो है बाहिफाजत जा सकें। वर्किंग वुमेन्स डे की तकरीब एक पैगाम है कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत देना सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरा साल जरूरी है। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के तहत कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िदा 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले में किताबों की खरीदारी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। कुतुब मेले के 5वें और आखिरी रोज़ भी कुतुब बीनी के शौकीन अफराद ने जौक दर जौक शिरकत की। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। कराची के कुतुब बीनों का सबसे बड़ा मेला एक्सपो सेंटर में जारी। 5 रोज़ा वर्ल्ड बुक फेयर का आखिरी रोज एक्सपो सेंटर तलबा, असातिज़ा, इल्मी और अदबी शख्सियात से खचाखच भरा नजर आया। बुक फेयर में मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर्स, मुसन्निफीन, किताब फरोश और किताब दोस्त बड़ी तादाद में मौजूद रहे। कुतुब मेले में तालीमी, अदबी, मजहबी, साइंसी और बच्चों की किताबों समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हजारों किताबें दस्तयाब रही। हमने अभी तक बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें देखी हैं, जैसे इस्लामिक बुक्स देखी हैं बहुत सारी और हिस्ट्री वाली बहुत बुक्स देखी हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है हमारा। बहुत अच्छी बुक्स थी, बहुत अच्छा जा रहा है। बड़ी किताबें यहाँ पे और बहुत अच्छी अच्छी किताबें मैं हर साल लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ की बहुत जो फर्स्ट कॉपी भी होती है ना, वो भी हमें रियायत के साथ मिलती है। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से आने वाले पब्लिशर्स ने अपने स्टॉल लगा रखे थे, जहाँ हर उम्र के अफराद, तलबा, असातिज़ा, अदबी शख्सियात समेत आम क़ारीन अपनी दिलचस्पी की किताबें खरीद रहे थे। मोहतात अंदाज के मुताबिक कुतुब मेले के पहले 4 दिन एक्सपो सेंटर में आने वाले शायकीन कुतुब की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर गई। कुतुब मेले में 140 मारूफ पब्लिशर्स और 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुंदगान शरीक रहे। कन्वीनियर कराची बुक फेयर वकार मतीन का कहना था कि आलमी कुतुब मेले में शहरियों की जानिब से बहुत अच्छा और मुस्बत फीडबैक मिला। अवाम ने इल्म-नोश इक़दाम को खूब सराहा। आज 5वां दिन है और जो हमारे गुज़श्ता सालों के रिकॉर्ड थे वो 3 दिन में ब्रेक हो चुके हैं। लाखों लोग आए हैं
पेरेंट्स आए हैं, लाइब्रेरीज आई हैं, स्कूल आए हैं, यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। और बड़ी अहम बात यह कि जो स्टॉक हमारे लाहौर से, गुजरांवाला, इस्लामाबाद से, जेहलम से आए हुए थे, उनके स्टॉक ख़त्म हो गए। लाखों किताबें बिकी हैं और सब खुश हैं। और जो पूरे साल इंतज़ार करते हैं, वो जिन्होंने 2 स्टॉल मांगे थे वो अब 4 मांग रहे हैं। एक्सपो सेंटर के 3 हॉल्स में मजमूई तौर पर 329 किताबों के स्टॉल्स लगाए गए थे। कैमरामैन नवीद उर रहमान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।